पॉपुलर है यहाँ पे, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है? हम लोग का जो है जो मेन मेन्यू इट कम्स फ्रॉम अब्रॉड वी हैव टू स्टिक टू द रेसिपी एंड दैट्स हाउ वी इफ यू गो टू Nando's anywhere in the world you'll find the same product, you'll find the same peri peri sauce, you'll find the same the grilled chicken, so that's what we're working on. Yes, what happens with time to time we try to introduce different dishes to attract further customers and which is closer to the taste of our customers. आप क्या कहेंगे आजकल जो यूथ है, अब आज से 10-12 साल पहले की बात करते हैं, नैंडोज को मार्केट में आए हुए 11 साल हो गए, उस वक्त नया कल्चर था, उस वक्त आपके पास फास्ट फूड जॉइंट्स थे बट दे वर मोस्टली टेक अवे प्लेसेस, चीपर प्लेसेस, फिर एक कॉफी एंड कैफेज का कल्चर आया वे पीपल कुड 11 बजे भी आप जाएं तो दे आर सिटिंग एंड दे आर हैविंग कॉफीज. व्हाट आई नोटिस अबाउट नैंडोज इज के बिग रेस्टोरेंट्स आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक वक्त में 100-150 लोग यहाँ पे आराम से दे कुड बी कवरिंग योर टेबल्स. तो यानी ये आज आप where would you fall? Is this a fast food place? It is not exactly fine dining. How have you positioned Nando's? Good question. Actually, Nando's, I would say, is playing in a niche market at the moment. We are casual dining, right? So we don't directly compete with the fast food chains, and we don't even compete with the fine dining, right? So that's how I say it's a niche market. So it's one of those things कि जो spontaneously आप decide कर सकते हैं. अपनी फैमिली के साथ आपने 7 बजे सोचा है कि जी कहाँ जाएं, तो चलो Nando's चलते हैं, या फ्रेंड्स के पास 1 घंटा है अभी लंच आवर में, तो let's kill it with a great meal. ठीक है, तो आज भी आप समझते हैं कि व्हाट्स योर कोर मार्केट? इज इट द टीनेजर्स, इज इट द अंडरग्रेड स्टूडेंट्स या फिर प्रोफेशनल्स? Good question again. If you ask my theory about that, we cater to a 7-year-old to a 70-year-old. We really do not concentrate on the teenagers only. If you see, because this is a family restaurant, right. So we do encourage. In the afternoon, it's a different market. It's the corporate client and the people working, the mothers taking their children back from school, the teenagers coming back from the college. Right. In the night, it's all family, right? And then there's caters to all ages. साहब मुझे ये बताएं कि कई रेस्टोरेंट्स में, बल्कि अगर हम देखें तो हमारा लाइफस्टाइल ही बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या कभी जो हालात ख़राब हो जाते हैं, कभी स्ट्राइक कॉल की जाती है, उससे ना सिर्फ बिजनेस बल्कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुतासर होती है. तो जो आपके रेस्टोरेंट में आने वाले लोग हैं या जो आपका बिजनेस है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, वो किस तरह इम्पैक्ट होता है? आपने विद इन द लास्ट ईयर, विद इन द लास्ट 5 years बिजनेस को बढ़ते हुए देखा है, या आपको लगता है कि law and order is one thing that we really need to focus on to put the house in order? Definitely, I can never take my eyes off the law and order situation, which disturbs everyone. So what happens? I mean, to help our customers, what we've started delivery service. So in case you cannot reach to a nearest Nando restaurant, please give us a call, and we'll be there for you. Right. So this has really helped the business. When there was no home delivery, do you feel that कुछ कराची के ऐसे इलाके थे या उन शहरों के इलाके थे जहाँ पे आपका बिजनेस है जो आप cater नहीं कर पा रहे थे, now you're able to reach out to them? Yes. Okay. And usually in a given day, कितनी आपके पास home delivery या office delivery requests या orders आते हैं? Difficult question actually. I don't know the exact numbers. It would again be a cutoff of 20-80%? Yeah, it's about, we are 80% dine-in and 20% delivery. Okay, restaurant. so that stays yes, with it. But we are working on expanding our delivery business, and very soon you will see more offers in terms of delivery as well. Now we've spoken at length about Nando's, लेकिन interestingly जो हमने कहा था कि अगर हम उन लोगों की बात करें जो इस तरह के इदारों को, जो इतने डायनामिक होते हैं, उसको लीड कर रहे होते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. और ये बात मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर की थी कि एक ज़माना था लोग किसी एक इंडस्ट्री को या एक कंपनी को ज्वाइन करते थे और 10 साल, 20 साल, 30 साल, बल्कि रिटायरमेंट तक उसी में रहते थे. बट नाउ द न्यू ग्रेजुएट्स दैट वी आर इंटरेक्टिंग विद, वो एक फील्ड में एजुकेशन हासिल करते हैं, दूसरी में काम शुरू करते हैं, फिर हर 5 साल के बाद या तो इंडस्ट्री या अपनी जॉब को चेंज कर रहे होते हैं. एंड दैट इज ट्रू फॉर अदनान साहब एज वेल, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम एन एब्सोल्युटली डिफरेंट इंडस्ट्री. यू वर प्रीवियसली इन एन एनर्जी सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद एनर्जी से एनर्जेटिक फूड तक का ये सफर आपने कैसे किया? I think it was a short jump for me, you can say, but a very, very, very difficult decision on the both ends, in terms of my employers as well and for me as well. But I found that, yes, I've spent my life in the energy sector, and I just thought that it's time for a change. And I considered it as a career jump as well, because
I'm a man who worked for a company for longer. I'm not a job switcher every 5 years, just like you described, like the teenagers just switch a job after 2 years. So I don't do that. So yes, I gained enough experience, and now I want to use that experience in the food sector. अदनान साहब, as a CEO, अगर आपके पास एक resume आता है for somebody who wants to join you at a middle or a senior management position, और उसके CV में आप यही देखें कि हर 2 साल के बाद या तो जॉब या इंडस्ट्री स्विच की हुई है, कुछ लोग कहते हैं, इसको देखते हैं कि भाई एक बंदे का बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस हो गया है, बट एज अ CEO डू यू इनकरेज दैट, और आपको ये बात एक पॉजिटिव के तौर पे लगती है किसी के रेज्यूमे में, या आप कहते हैं कि जी मुस्तकिल मिजाजी की कमी है, किसी एक जगह टिक के काम कर लेते तो शायद वहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा होता? We fully appreciate diversity, and definitely we look for diversity in terms of the experience, in terms of gender as well. But on the other hand, we look for loyalty as well. Just like we said, we focus on our people. So we do not want, because we spend time and money on people to develop them. So we do not want those people to work with us for 1 year and then just start switching. So that's not good for us and for them as well. ठीक है, तो यानी अगर आपके पास ऐसा कोई CV आए तो शायद थोड़े से मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा हॉपिंग की हुई हुई. तो कमिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले जो आपका एक्सपीरियंस था, इट वाज विद अ मल्टीनेशनल कंपनी. नैंडोज इज ऑल्सो मल्टीनेशनल चेन बट लोकली ओन्ड, लोकली फ्रेंचाइज. अक्सर लोग, जब मैं अंडरग्रेड से बात करती हूँ या यंग प्रोफेशनल से बात करती हूँ, घबराए हुए होते हैं. उनको लगता है कि जी जो लोकली ओन कंपनी है उसके लिए हम लोकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्टेट के साथ काम करना मुश्किल होता है. आपका क्या एक्सपीरियंस है? I am having a wonderful experience. To be honest, I had the same fear as well. Coming from a multinational, spending all my career into a multinational and coming into a state organization, which I really do not want to call a state organization, because there is nothing different. When I start comparing the two organizations, it's not different at all. सही, तो वही level of corporatization. It is, because now the states are not the same states which were there 50 years ago. Now it's the second and third generations. They have studied abroad. They have gone through the trainings, and so they've learned the new ways of working. So there is not much difference between a multinational and a state organization. That's definitely a good news. लेकिन इसके अलावा भी, because a lot of us are struggling with transition, recession की वजह से या दूसरी वजूहात की वजह से हम अक्सर जॉब्स बदलते हैं और नई जगह पे नए तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त तो लगता है. How do you adjust? We'll find out the tips from Adnan Saab, but right after a short break. सेहत जिंदगी की अव्वलीन तरजीह है. इसको हासिल करने का एक तरीका ये है कि तहफ़्फ़ुज़ और इलाज की जुस्तजू की जाए बेहतर सेहत के हुसूल के लिए. देखिए द हेल्थ शो. प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय. खांसी जुकाम की असली वजह है ये बदलते जरासीम. इनको तो स्टॉप करें, इसको स्टार्ट करें. एडवांस लाइफ बॉय. Imported Josh condoms, classic और strawberry flavor. एंड सरसब्ज नाइट्रोफॉस, जमीन की जान, फसल की शान. देखिए दी हेल्थ शो पीर से हफ्ता रात 11 बजे और पीर से जुमा दोपहर 12 बजे. जिस तरह रूह की ताजगी शरीयत व तरीक़त है, उसी तरह क़ुव्वत तस्खीर का राज तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. यकीनन बालों के गिरने में जिस्मानी कमजोरी का बहुत बड़ा हाथ है. एक कॉलर हमारे साथ हैं. बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा गिर रहे हैं. आपको अवार्ड देना चाहता हूँ कि आप इस्लामी प्रोग्राम कुरान व हदीस और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने तिब्बी मसाइल का हल जानिए. खुशी हुई है कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया है. खजूरों में जो कैल्शियम पोटेशियम का जो कम्बिनेशन है, ये जल्दी इमराज को भी खत्म करता है. हेल्थ टीवी का खुसूसी प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय. लाइफ का मजा जरा हटके. कैफे बाय मेफेयर. देखिए तिब्बे नबवी पीर से जुमा शाम 4 बजे और पीर से हफ्ता सुबह